Good morning, good evening, at whatever time you are watching. Welcome to my next video. The next video is on the poem The Road Not Taken by Robert Frost, Class 9, Beehive. So, first, we will see something about the poet Robert Frost. Now, the Robert Frost, he was born on 26th March 1874. He died on 29th January 1963 at the age of 88 years. He was an American poet. Majority of his works is based on humanity and nature. Majority of his poem that you will read, you will find and that he was inspired by England countryside. So he was very much, though he was an American poet, he was very much influenced by England's countryside because he had spent a portion of his life in England too. Then he used a lot of metaphor. The example we'll see in the poem once we begin commence. In his writing career, he wrote 256 poems. He was a college dropout, and not once but twice. He was college dropout. His first poetry was My Butterfly and Elegy, and he sold it for $15 then, and roughly it is around $300 in present. So $15 then is worth $300 now currently. Is approx, not exact. He is the only poet to receive not one, two, but 4 Pulitzer Award. Now, something very much of what do you call prestige. Pulitzer Award is given to those poets whose works are recognized. So majority of the poet, they receive 1 or 2, but he received 4 Pulitzer Award in spite of being a college dropout twice. So this is a big achievement for him. And the more interesting fact about Robert Frost is that there is a mountain named after him, and he was the first poet to deliver a speech on the behalf of an American president, that is Franklin. So this is something about the poet. Now we'll move to the background of our topic, that is The Road Not Taken. Now coming back to the poem The Road Not Taken. So you'll be amused to know that this poem was written as a private joke for his friend Edward, because Edward, he used to take a long time in making any decision. So this was a poem dedicated by Robert Frost to his friend Edward, that is Edward Thomas, because he used to take a long time. जरूरत से ज़्यादा समय वो लगाते थे किसी भी फैसले पर पहुंचने के लिए। किसी भी चीज़ का निर्णय जब लेना हो तो उन्हें काफ़ी वक्त लगता था। तो एज अ जोक, उनका मजाक उड़ाते हुए
रॉबर्ट फ्रोस्ट ने अपने फ्रेंड एडवर्ड थॉमस को ये पोएम लिखा था। लेकिन उस वक्त दैट टाइम it was written what do you call as in a blueprint. It was not in the form that we are reading it right now. So it was in a blueprint form. So that is about the poem, कि ये poem का जन्म कैसे हुआ, है ना, how the poet thought of writing this poem. So it was, you can say, a joke, sarcastic for his friend. Now coming back to the poem. Now just as we saw, जैसा हमने देखा कि ये पोएम जो है एक मेटाफर है। अब मेटाफर why is it a metaphor? So we can see the heading, the road not taken. Now did you wonder that why the heading is the road not taken? The road taken heading क्यों नहीं है? So this is a metaphor for his friend एडवर्ड थॉमस, क्योंकि वो बहुत ज्यादा समय लेते थे किसी भी निर्णय पर पहुंचने के लिए या डिसाइड करने के लिए। सो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि ऑथर ने ये पोएम क्यों लिखा। ओके, नाउ मूविंग टू द पैसेज, द फर्स्ट पैसेज, है ना, द फर्स्ट पैसेज इज two roads diverged in a yellow wood, and sorry, I could not travel both, and be one traveler. Long I stood and looked down, one as far as I could, to where it bent in the undergrowth. So, इस पोएम में पोएट क्या समझाना चाह रहे हैं, वो क्या कह रहे हैं, और ये मेटाफर कैसे है, वी विल सी। जैसा मैंने आपको बताया था कि ये पूरा पोएम एक मेटाफर ही है ना। तो हेडिंग में मैंने आपको बता दिया द रोड नॉट टेकन। सो यहां पे रोड क्या है? रोड मीन्स द पाथ, जर्नी। हमारी जिंदगी एक जर्नी है, एक यात्रा है जिसे हर किसी को पूरा करना है। और इस जीवन में बहुत सारे ऐसे सिचुएशन, सर्कमस्टांसेस, मौके आते हैं जहां हमें फैसला लेना पड़ता है, और बहुत सारे ऑल्टरनेटिव्स अवेलेबल होते हैं। लेकिन हम उन सारे ऑल्टरनेटिव्स को चूज नहीं कर सकते। उन सारे ऑप्शंस, ऑल्टरनेटिव्स से हमें सिर्फ एक ऑप्शन चाहिए, हमें सिर्फ एक ही मौका होता है, हमें सिर्फ एक ही ऑप्शन चूज करने होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप अभी 9th में हैं, यू आर इन 9th, यू विल गो इन 10th, और फिर आप बोर्ड देंगे। उसके बाद आपको 11th 12th में जाना है। लेकिन 11th 12th में जाने से पहले आपको अपने जीवन का सबसे बड़ा फैसला करना है, और वो फैसला क्या है? आपको कौन से स्ट्रीम सेलेक्ट करने हैं। देयर आर ओशंस ऑफ ऑप्शंस अवेलेबल टू यू, ओशंस ऑफ ऑप्शंस आर देयर, ऑल्टरनेटिव्स आर देयर, लेकिन आपको क्या सेलेक्ट करना है वो आप पे डिपेंड करता है। और जो आप सेलेक्ट करेंगे, जिस ऑप्शंस को आप चूज करेंगे, वो आपका फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन डिफाइन करेगा। योर चॉइस विल हैव एन इफेक्ट ऑन यू इन द लॉन्ग रन। ये शॉर्ट रन की बात नहीं हो रही है। सो वी कैन सी कि हमारे पोएट जो है, दैट इज रॉबर्ट फ्रोस्ट, ही वॉज अ फार साइटेड। फार साइटेड मीन्स वो कल परसों के इफेक्ट्स और इंपैक्ट्स की बात नहीं करते, वो बात कर रहे हैं लॉन्ग रन की। आप आज
डिसीजन लेते हैं कि आपको कौन सा स्ट्रीम सेलेक्ट करना है, तो फिर आप 2 साल 11th-12th पढ़ेंगे, उसी स्ट्रीम के बेसिस पे आप अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट करेंगे और फिर उस बेसिस पे आपको जॉब मिलेगा, आप जॉब करेंगे। इट इज देन दैट यू विल रियलाइज, आप दूसरे को देखकर डिससेटिस्फाइड होंगे कि वो उस प्रोफेशन में है, वो उसकी इनकम ज्यादा है, मैं इस प्रोफेशन में हूं, मेरी इनकम कम है। देन उस वक्त आपके बहुत सारे फ्रेंड्स खुश होंगे कि उनका एक डिसीजन, उस एक डिसीजन की वजह से ही इज हैप्पी इन हिज लाइफ, फाइनेंशियली साउंड, ही इज अर्निंग अ गुड पैकेज। और वहीं आपके कुछ ऐसे फ्रेंड्स होंगे जो अपने लाइफ में खुश नहीं है, बिकॉज दे आर नॉट अर्निंग, उनकी पैकेज अच्छी नहीं है। सो वी कैन सी कि किस तरह से आपका एक डिसीजन आपको पूरी लाइफ इंपैक्ट करता है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट इज दैट यू कैन नॉट टर्न बैक। ऐसा नहीं है कि आप दोबारा 10th बोर्ड देंगे, 11th में आप अपना स्ट्रीम चेंज करेंगे, फिर ग्रेजुएशन करेंगे और फिर एक अलग लाइफ सेलेक्ट करेंगे। ये पॉसिबल नहीं है। सो आवर डिसीजन हैज अ ग्रेटर इंपैक्ट, कॉन्सिक्वेंसेस, हमारे फैसलों का क्या नतीजा निकल कर आता है, ये हमारे डिसीजन पे डिपेंड करता है। सो इफ वी थिंक थॉरली, वाइजली, हम सारे प्रोज और कॉन्स अगर देखकर डिसीजन लेते हैं तो इट इज फ्रूटफुल। एंड इफ वी मेक अ डिसीजन इन हेस्ट मीन्स जल्दबाजी में, या किसी को देखकर, आपके फ्रेंड्स हैं, उन्हें देखकर आपके फ्रेंड्स ने कॉमर्स लिया है, चलो मैं भी कॉमर्स ले लेता हूं, उनके साथ आप भी कॉमर्स ले लेते हैं, या साइंस लिया है तो उसके साथ साइंस ले लिया, तो योर डिसीजन इज बीइंग इन्फ्लुएंस्ड। नाउ रिमेंबर, एवरीवन इज इंडिविजुअल, हर किसी की एक अपनी लाइफ होती है और आपका अपना फैसला होता है। तो अगर आपका फैसला किसी और से इन्फ्लुएंस्ड होता है तो you will regret. And in this poem, the Robert Frost has explained the same. So let's see the first poem, that is the first stanza, है ना? That two roads diverged in yellow wood, and sorry I could not travel both, and be one traveler along I stood, and looked down one as far as I could to where it bent in the undergrowth. So इस फर्स्ट आपको इस स्टैंजा के डिफिकल्ट मीनिंग से आपको रूबरू करा दिया जाए, है ना? डाइवर्ज्ड का मतलब क्या होता है? स्प्लिट, डिवाइड, है ना? बाइफरकेट कर देना। जब कोई चीजें बट जाती हैं, कोई एक चीजें बट जाती हैं तो उसे बोला जाता है डाइवर्ज्ड। Then yellow wood. Now, wood means a forest of a year. कोई लकड़ी का टुकड़ा नहीं, not a log, है ना? Wood का मतलब है यहां पे forest. And yellow indicates that the leaves on the trees were of yellowish color. So now, why the leaves are usually green, right? But here it is yellow wood. It means the leaves on the trees were turning yellow, pale, means no life. It means it was an autumn season and the trees were shedding their leaves. अब autumn season क्या होता है? पतझड़ का मौसम। पतझड़ मतलब एक सीजन जब पेड़ अपने सारे पत्ते गिरा देता है, झाड़ देता है
है ना, एंड स्प्रिंग में आप दोबारा देखते हैं कि नए पत्ते पेड़ में आ जाते हैं। सो दिस इज द साइकिल ऑफ नेचर। सो यहां पे क्या है, ये ऑटम सीजन इंडिकेट करता है येलोवुड, मतलब पेड़ में सारे पत्ते जो हैं वो येलो हैं, येलोविश हो चुके हैं, और जंगल का जो रास्ता है वो पत्तों से भरा हुआ है। सो वो कहां पे खड़ा है? ही इज स्टैंडिंग ऑन द फॉक ऑफ द रोड। फॉक का मतलब क्या होता है? फॉक का मतलब होता है जब कोई एक रास्ता दो में बट जाता है। सो दिस इज अ फॉक, है ना। आप किसी एक रास्ते पे चल रहे हो और आगे चलकर आप देखेंगे कि ये रास्ता जो है डिवाइड हो चुका है, बाइफरकेट हो चुका है। सो ही इज स्टैंडिंग अवर हियर, he is standing over here and now thinking which route to opt, किस रास्ते पे चला जाए। सो किस रास्ते पे चला जाए। नाउ यहां पे he is क्या कर रहा है? he is in a very difficult position, uncomfortable position. Uncomfortable why? Because it is very important for him to think very wisely and rationally कि इन्हें कौन सा रास्ता सेलेक्ट करना है, ऑप्ट करना है। इस रास्ते पे जाना है या इस रास्ते पे जाना है, कौन सा रास्ता सेलेक्ट करें। अब अगर ये रास्ता सेलेक्ट करते हैं तो इनकी मंजिल कहीं और है, ये कहीं और जाएंगे। अगर ये रास्ता सेलेक्ट करते हैं तो ये रास्ता कहीं और जाता है, ये कहीं और, इनकी मंजिल कहीं और होगी। तो अब कौन सा रास्ता इनके लिए ज्यादा बेहतर है, ये डिसाइड करना बहुत मुश्किल होता है। बट आफ्टर ऑल ये डिसाइड कर लेते हैं, है ना, एंड ही ऑप्ट्स। लेकिन साथ में इन्हें रिग्रेट भी होता है ना, जैसा कि पोएम में मेंशन है, एंड सॉरी आई कुड नॉट ट्रैवल बोथ। नाउ बिकॉज ही इज अ सिंगल, मैं सिंगल इंसान हूं, है ना, तो आई विल चूज ओनली वन एट अ टाइम। एक समय पे एक ही रास्ते पे चला जा सकता है। अगर दो नाव पे सवारी करेंगे तो क्या होगा? डूब जाएंगे। सो एक बार में एक ही नाव की सवारी की जा सकती है। अगर आप कुछ डिसाइड करते हैं तो एक बार में किसी एक ही डिसीजन को इंप्लीमेंट कर सकते हैं, सभी को नहीं कर सकते। सो ये एक रास्ता सेलेक्ट करते हैं, लेकिन साथ में इन्हें दुख भी होता है, ही इज रिग्रेटिंग, कि वो दूसरा रास्ता ऑप्ट नहीं कर सकते। सो ही ड्रॉप्स द आइडिया ऑफ टेकिंग द अदर रूट। व्हाई? ही थिंक्स दैट सम डे इन द फ्यूचर ही विल एक्सप्लोर द अदर रूट। वो दूसरे रूट को एक्सप्लोर करेंगे कि यह रास्ता उन्हें कहां ले जाता है। हालांकि ये जानते हैं कि ऐसा करना पॉसिबल नहीं है। जैसा मैंने आपको पहले बताया कि आप अपने जॉब में जाकर ये डिसाइड नहीं कर सकते हैं कि आप दोबारा 11th-12th दूसरे स्ट्रीम से करेंगे और आपका कोर्स इजी हो जाएगा, लाइफ इजी हो जाएगा। सो ये एक ऐसा डिसीजन है जो लाइफ में एक बार लिया जा सकता है। आप बार बार पीछे नहीं आ सकते। बार बार क्या, आप इवन वंस यू कैन नॉट कम बैक। सो दिस इज द मेटाफर ऑफ हियर। द रूट, ये रास्ते, ये लाइफ है। इट इज द जर्नी ऑफ लाइफ। और किस रास्ते पे जाना है, दैट इज द डिसीजन। सो ही सेज दैट ही कैन नॉट टेक बोथ द पाथ बिकॉज ही इज अ लोन ट्रैवलर। वो एक अकेला यात्री है, वो दोनों रास्ते पे नहीं जा सकता, सिर्फ एक पे जा सकता है। सो वो एक रास्ता सेलेक्ट करते हैं, लेकिन दूसरे पर वो सोचते हैं कि हम बाद में करेंगे। एंड वन बी ट्रैवलर लॉन्ग एज आई स्टूड एंड लुक्ड डाउन एंड देन व्हाट ही इज डूइंग, ही इज स्टैंडिंग हियर एंड लुकिंग। तो जब आप यहां से किसी मोड़ पे खड़े होकर, है ना, एक रास्ता है, तो वो कहां तक दिखेगा? जब तक कि आप, जितनी दूर आपकी नजर जा सके, और
फिर यहां से अगर ये बेंड करता है तो आपकी नजर सिर्फ यहीं तक सीमित हो जाती है, इट इज लिमिटेड टिल हियर, आप इसके बाद नहीं देख सकते। सो द सेम थिंग इज हियर, पोएट जो है वो यहां से देख रहे हैं और यहां तक उनको दिख रही है, लेकिन आगे रास्ता मुड़ जाता है और इन्हें कुछ भी दिखाई नहीं देता। तो यहां भी एक मेटाफर है कि एक समय तक आपको दिखता है कि आपका डिसीजन कितना इंपैक्ट, कितना असर आपकी जिंदगी पे करेगा, लेकिन एक समय के बाद आपकी यादें जो है वो धुंधली हो जाती है और आपको एहसास नहीं होता है कि आपका डिसीजन क्या इंपैक्ट करेगा। आई होप द फर्स्ट पैराग्राफ इज the first stanza is clear. Now moving on to the next stanza. So now the second stanza, और ये second stanza में क्या होता है, then took their other just as fair and having perhaps the better claim because it was grassy and wanted wear, though as for that the passing there had won them really about the same. So इस सेकंड स्टैंजा में पोएट फाइनली डिसाइड करते हैं कि इन्हें किस रास्ते पे जाना है। ओके, एंड तब वो देखते हैं कि दोनों रास्ते जो हैं वो लुक अलाइक हैं, बिल्कुल एक जैसे हैं। द ओनली डिफरेंस इज, एक छोटा सा फर्क है कि एक रास्ते पे जो सारे पत्ते हैं वो एज इट इज हैं, सुबह का टाइम है, सुबह का माहौल है ना, तो सारे पत्ते जो हैं वो एज इट इज हैं, और दूसरे रास्ते पे सारे पत्ते जो हैं वो ट्रॉडन है, मतलब कुचले हुए हैं। तो कुचले हुए हैं मतलब ये एक रास्ता जो है पहले से बनाया गया है, लोग उस पे जा चुके हैं, उस पे चल चुके हैं, तो इट इज सेफ, वो सुरक्षित है। लेकिन ये रास्ता जिस पे अभी तक कोई चला नहीं, पत्ते कुचले हुए नहीं हैं, सो ये एक नया रास्ता है जो आप नहीं जानते हैं कि इस रास्ते पे चलकर आपकी मंजिल क्या होगी, आप कहां पहुंचेंगे। सो ऑथर यहां पे पोएट डिसाइड करते हैं कि वो उस रास्ते को सेलेक्ट करेंगे, उस चॉइस को जो कॉमन नहीं है। सो ही, अब यहां पे पोएट क्या चाहते हैं, ही इज ट्राइंग टू बी डिफरेंट फ्रॉम अदर्स, ही इज ट्राइंग टू बी यूनिक, जो बिल्कुल भी गलत नहीं है। एक आप एक्सप्लोर करना चाहते हैं, पोएट ने उस रास्ते को सेलेक्ट किया है, उस रास्ते को चूज किया है जिस पे अभी तक कोई चला नहीं है। इट मीन्स नो वन नोज कि ये रास्ता उन्हें किस मंजिल पे ले जाएगा। उसी तरह अगर आप कुछ डिसीजन हट कर लेते हैं, सभी लोगों से अलग डिसाइड करते हैं, तो इसका मतलब क्या है, यू वॉन्ट टू एक्सप्लोर योर सेल्फ, आप देखना चाहते हैं, यू आर एक्टिंग ऑन योर ओन, यू आर नॉट बीइंग इन्फ्लुएंस्ड, आप किसी के रास्ते पे नहीं चलना चाहते, बल्कि आप अपना एक अलग रास्ता, खुद का रास्ता बनाना चाहते हैं। सो when he sees that both the path are same, it is a look-alike and it is fair, if not fairer, if not best, both the path, it looks similar, it's the same. So I hope the second stanza is also clear to all of you. Now moving to the third stanza. And both that morning equally lay in leaves no step had trodden black. Oh, I kept the first for another day, yet knowing how way leads on to way, I doubted if I should ever come back. Now, इस स्टैंजा में पोएट क्या कह रहे हैं कि सुबह का टाइम है और दोनों रास्ते पे पत्ते गिरे हुए हैं, लेकिन एक रास्ते पे चलने का निशान है, पता चलता है पत्ते जो हैं वो टूटे हुए हैं, बिखरे हुए हैं, मतलब इन पे लोग चल चुके हैं, और दूसरे रास्ते पे कोई अभी तक चला नहीं, बिकॉज द लीव्स
आर लाइंग ऑन द ग्राउंड जस्ट एज इट इज, वो कुचले हुए नहीं है. सो ही इज स्टैंडिंग एंड ही इज कंफ्यूज्ड, क्योंकि दोनों रास्ते सेम हैं. वो कंफ्यूज्ड है किस रास्ते पे चले किस रास्ते पे नहीं. लेकिन लास्ट में जैसा मैंने आपको बताया कि उन्होंने डिसाइड किया है और फिर वो रास्ते पे एक रास्ता वो सेलेक्ट करते हैं और उस रास्ते पे चलने लगते हैं. दूसरे रास्ते को वो कल के लिए छोड़ते हैं. कल मतलब फ्यूचर के लिए वो छोड़ते हैं कि फ्यूचर में कभी वो आएंगे. हालांकि उन्हें ये एहसास हो रहा है कि वो काश वापस ना आ सके. मतलब आपने जो एक बार डिसाइड कर लिया वो दोबारा समय में आप पीछे आकर अपने डिसीजंस को चेंज नहीं कर सकते. सो दिस इज द थर्ड स्टैंजा. नाउ द फोर्थ स्टैंजा. I shall be telling this with a shy, somewhere ages and ages hence. Two roads diverged in a wood, and I took the one less traveled by, and that has made all the difference. So, अब यहां पोएट जो हैं ये बताते हैं कि कई साल बाद, कई साल बीत चुके हैं और आज वो जो भी हैं वो अपने उस एक फैसले की वजह से हैं. Means whether you are successful or you have failed, no matter what you are, it is all because of that one decision you took in your life. So if you are successful, you embrace those decisions. आप खुश होते हैं कि आपका वो फैसला बिल्कुल सही था. अगर आप अपनी लाइफ में फेल हो जाते हैं, सक्सेस अचीव नहीं कर पाते हैं, तो उस वक्त आपको रिग्रेट भी होता है कि अगर आपने वो डिसीजन नहीं लिया होता तो आज आपकी लाइफ कुछ और होती. बट हमें इससे डीमोटिवेट नहीं होना है. फेलियर एंड सक्सेस इज अ पार्ट ऑफ लाइफ. जरूरी यह है, इंपॉर्टेंट यह है कि वी टेक आवर डिसीजन thoroughly and wisely after observing all the pros and cons. अगर हम ऐसा नहीं करते हैं, हम सूझबूझ के साथ, सोच विचार के साथ अगर अपना फैसला नहीं लेते हैं तो इसका खामियाजा हमें खुद भुगतना पड़ेगा. No one will be the sufferer, will be the lone sufferer. And if we take the decision rationally, wisely, thoroughly, the credit also goes to us. No one to blame. So future में आप जो भी बनेंगे, failure or success, whatever you achieve in the future, it will be all because of your decision. So जो सक्सेस करते हैं अच्छी बात है, लेकिन जो फेल करते हैं डिमोटिवेट नहीं होना है. याद रखिए कि फेलियर इज द पिलर ऑफ सक्सेस. एग्जाम्पल, द बिगेस्ट एग्जाम्पल, थॉमस एडिसन. ही ट्राइड नंबर ऑफ टाइम्स बट ही वॉज नॉट डीमोटिवेटेड. उन्होंने कहा है कि he did not fail but he learned a number of ways which does not work. So I think you find this statement motivated. This line will motivate you, I think. So never be scared of your failure and always embrace your decision. हमेशा अपने फैसले पर गर्व करें, क्योंकि अगर सक्सेस मिलती है, अगर आपका डिसीजन सही है, सक्सेस मिलता है तो अच्छी बात है. लेकिन अगर आपका डिसीजन आपको सक्सेस दिलाने में नाकाम होता है तो याद रखिए आप भी गेन करेंगे और वो है एक्सपीरियंस. सो आई होप कि आपको मेरा ये एक्सप्लेनेशन, ये पोयम समझ में आया होगा
और अगर समझ में नहीं आया है, यू कैन write it in the comment box, and I will try to clear your doubts in the next video. Thank you.